awareness among people about literacy so that everyone know about their individual and social right. To continue our program, I would like to invite the girl of PFIS first semester for performing Saraswati Vandana. I would like to invite the student of BCA, BA, BSc Yoga for performing skit on the importance of education. हाँ पापा क्या कर रहा है बच्चा? पढ़ाई क्या करेगा पढ़ाई करके? डॉक्टर बनूंगा। अरे बहुत बढ़िया। अरे ना भाई मैं डॉक्टर अरे मैं डॉक्टर बनूंगा।
आपके नाम की चिट्ठी आई है आपके रिश्तेदारों में दी होगी क्या सब यहाँ पे साइन करो साइन तुम्हारे रिश्तेदार की होगी कौन सा रिश्तेदार पता अरे तो पढ़ना सुना दे अच्छा टाइम नहीं लगा सुन तो टाइम नहीं लगा अरे हाँ आता है क्या है वैसे नाम तो ठीक है ये किसकी एक काम करते हैं हम शाम को आके पढ़ लेंगे अरे अभी सुबह दिखाई नहीं देता है ना अरे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि आई फ्लू हो रखा है अरे शाम को ठीक हो जाएगा शाम को पढ़ लेंगे अरे नहीं शाम को पढ़ लेंगे अरे नहीं शाम को पढ़ लेंगे अरे शाम को पढ़ लेंगे अरे अच्छा एक काम करो आप साहूकार के पास चले जाओ वो आपको बता देंगे हाँ आता है हाँ हम शाम को पढ़ लेंगे ठीक 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 भाई साहब बताओ कैसे आना हुआ आपका ऐसे घूमते फिरते आगे अच्छा बताओ क्या काम है आपको अरे काफी चिट्ठी आई थी अच्छा, पढ़नी है आपको पढ़ना नहीं आता नहीं स्कूल नहीं गए आप ना क्यों नहीं गए अच्छा चलो मैं पढ़ता हूँ मेरे पीरियड भाई साहब जी बहुत बड़ी चिट्ठी है तो इसके आपके पैसे लगेंगे कितने लगेंगे 500 रुपये 500 रुपये लगेंगे 500 हाँ जी 500 ज्यादा नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं अब जाओ जाओ जल्दी जाओ आवाज़ सबको ज़्यादा यही से है ना क्या पढ़ना है पढ़नी है अरे ये इसे कैसे बताऊं मुझे पढ़ने नहीं आता ये बात अल्लाह अरे भाई जी सिग्नल हाँ जी अभी आ नहीं रहे सिग्नल आगे अभी नहीं आ रहे सिग्नल अब नहीं आए अभी तो नहीं आए सिग्नल भाई बात तो ना पढ़ता भी नहीं आता आता है थोड़ा अगर नेट का साफ साफ बता दो साफ हाँ भाई अब तक ये वीडियो बड़ी सुनते अरे नहीं कितनी ना पड़ी हाँ मेरे प्रिय दामाद जी हम आपके सास ससुर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपकी धर्मपत्नी को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं खुशखबरी है बधाई हो अच्छा Wow, such a nice performance. Give them a big round of applause. A physiotherapist has the brain of scientist, the heart of humanist, and the hand of an artist. Now, I would like to invite
The day is an opportunity for physiotherapists from all over the world to raise awareness about crucial contribution the profession makes to keeping people well, mobile and independent. In 1996, the World Confederation of Physical Therapy, now known as World Physiotherapy, designated 8 September as World Physiotherapy Day. The day marks the unity and solidarity of the global physiotherapy community. It is an opportunity to recognize the work that physiotherapists do for their patients and community. Using World Physiotherapy Day as a focus, World Physiotherapy aims to support member organizations in their efforts to promote the profession and advance their expertise. Reports from around the world indicate that World Physiotherapy Day activities have a positive impact on the profession's profile and standing with both public and policy makers. Every year there is a theme of this day, as was the theme of 2021 was rehabilitation and long COVID. As we all know, that year was the year of pandemic due to COVID, in which physiotherapists made a huge contribution in curing the people. Because at that time, more and more people were suffering from lungs disease, in which chest physiotherapy contributed a lot. At present, the theme of this year 2023 is arthritis, with an in-depth look at some forms of inflammatory arthritis, including rheumatoid arthritis. This follows on from the theme for 2022, which focused on osteoarthritis. Arthritis is defined as an acute and chronic joint inflammation. Symptoms can include pain, swelling, stiffness and redness, which may contribute to reduced function and dexterity. Regular physical activity and exercise are important in the management of all forms of inflammatory arthritis, including rheumatoid arthritis, and offer numerous health benefits. At last but not the least, I fall in love with physiotherapy when I return my running track after ankle sprain. I fall in love with physiotherapy when I saw my aunt recovering from severe knee pain. I fall in love with physiotherapy when I saw an uncle recover from PIPD, and then I choose physiotherapy as a career. How do you realize it? Happy World Physiotherapy Day. Thank you and have a nice day. Thank you, Ms. Sarita, for sharing your views with us. You just have to believe me. I will never put you down. My healing hand and your dedication will give back your confidence crown. Now I would like to invite PPT department students for skills.
worth living in. Thank you. A very warm good morning to all in our present here. I am J.C. Pradhan from BSc Nursing First Sem. I am here to deliver a speech on literacy key to development. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. This quote was given by Mr. Nelson Mandela. The annual HRD Human Resource Development reported that our country has the largest number of illiterates in the world. Mind-bogglingly, 313 million adults are illiterate. The critical question arises, how is that even after 75 years of independence, we are still far away from the goal of universal literacy? The reasons are not far to see. India has been investing much less than many after other countries, Asian countries, in terms of education expenditure. As a nation, not only do we spend too little on education, the efficiency of resource utilization has also been very poor. Without mixing words, we can say that we lack the political will to take right steps to secure the literacy. It's simple. Instead of reciting the obvious mantra of making school going compulsory, we should make it compulsory to have good schools. The task that is also in its perception, but fairly simple in its execution. Literacy is the have and have not. In the terms of education, attainment has to be narrowed down. The only country will be known as the developed country. I am going to end my speech with a quote. Literacy is a bridge from misery to hope. Thank you and have Give her a big round of applause. Now I would like to invite Chetna for a speech. Respected teachers, seniors and my dear friends. Good afternoon to all of you. I am Chetna from Deputy Department. We all have gathered here to celebrate Literacy Day and I would like to speak some words on International Literacy Day. International Literacy Day is celebrated on 8th of September every year. It marks the international celebration on literacy. Literacy means ability to read and write, the act of being educated. Literacy is an essential need for development. The countries with low literacy rates are economically failed and their progress rate is very slow. The personality of an individual is polished if he and she is educated. But an illiterate person can be disrespected in society. The value of literacy can be imagined by taking the example of some African peoples where the literacy rate is much below average. Therefore, they are still working as slaves in other countries. Government of all countries also organize programs to create awareness in people about literacy. Government pays people to get the awareness, education and send their children to school. Literacy programs are also organized on school and colleges basis, where the students present speeches in order to demonstrate the value of literacy. Thank you everyone. Now, I would like to invite Srishti for speech. Good morning, Honorable Chairperson, respected teachers, all senior and my dear friends. A very good afternoon to all of you. I am Srishti Rawat from DB Department first year. I would like to speak some words on International Literacy Day. International Literacy Day is celebrated on 8th September year. It marks the international celebration and awareness campaign on literacy. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization declared a day of holiday in 1964 UNESCO. UNESCO literacy programs aim to create a To invite Zeener for speech on Literacy Day. A very warm and easy
dedicated to recognizing the profound importance of literacy in our lives and in the world around us. Literacy is the cornerstone of education and personal growth. It empowers us to read, write, and communicate effectively. It opens the door to knowledge, imagination, and countless opportunities in a world that is constantly changing and evolving. Literacy is the compass that guides us through the seas of information and helps us make informed decisions. This year, the theme of literacy is promoting literacy for a world in transition, building the foundation for sustainable and peaceful society. Remind us that literacy is not just about individual advancement, it is the foundation upon which we build stronger communities. As we celebrate International Literacy Day, let us also commit ourselves to the goal of ensuring that literacy is accessible to all, regardless of their background or circumstances. As students, we are in a unique position to make differences. We can embrace the joy of reading, taking lifelong learners, and encourage those around us to be seen. Last but not least, International Literacy Day is reminded of the power of words, the importance of knowledge, and the role each of us can play in building a more sustainable and peaceful world. Thank you. Have a nice day. Now I would like to invite a student of BSc Nursing for one act play on women literacy in society. A very warm good afternoon to all and all present here. We are the students of BSc Nursing First Sem. On this precious day, we are going to present a small act on importance of women literacy. This act, there are 5 scenes. Scene first describe the importance of an educated wife. There is a conversation between a husband and a wife about financial problems. मुझसे का फाइनेंशियली हैंडल नहीं हो रहा है। यहाँ जितना पैसा लगा सारा खत्म हो जाता है। अभी कल ही की बात है जब सैलरी आई थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा। अब तुम ही कुछ बताओ। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम बचत कैसे कर सकते हैं। हम अपना एक सेविंग अकाउंट खोलेंगे जिसमें जो भी बचे हुए पैसे हैं हम डिपॉजिट करवा देंगे, वो हमारे फिर आगे फ्यूचर में काम आ जाएगा। हाँ तुमने सही कहा, इससे हमारे पैसे बच जाएंगे और हमारे फ्यूचर में बच्चों के काम भी आएंगे, जिससे कि हमारे बच्चों की शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आएगी। In scene 2, we will see the importance of an educated mother. Maya helped Ria, her child, in her academics. मम्मा, आप फ्री हो? हाँ बेटा बोलो। मम्मा मुझे एक क्वेश्चन बता दो। बेटा इसे ऐसे सॉल्व करना है, देखो हो गया। थैंक यू अम्मा, आपकी वजह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेटा तुम भी पढ़ो लिखो, नहीं तो तुम्हें आगे चल के समाज में अपना अस्तित्व बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। Scene 3, a daughter. Maya shows her thankfulness to her parents. मेरे माता पिता ने मुझे उस समय में भी उच्चतम शिक्षा दी जब बेटियों का पढ़ाई के प्रति कोई महत्व ही नहीं था, और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा में मदद की। अगर मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया नहीं होता तो आज मेरी बेटी इतनी आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि हमारी बेटी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। बेटियां बेटियों से संसार है और बेटियां बिना कुछ भी नहीं। धन्यवाद। Scene 4, important as an educated sister. Maya helps Divya, her sister, in job application.
Job leader. Presenting a woman as the job leader. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे उस समय पे उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी जिस समय लड़कियों का पढ़ा लिखा होना वैल्यू नहीं किया जाता था। उनके कारण आज मैं आपके सामने एक प्रोफेसर के रूप में खड़ी हूँ। मैंने हमेशा से अपने परिवार को अलग अलग रूप से सहायता प्रदान की है। अगर मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ी लिखी ना होती तो मैं आज आपके सामने इस रूप में खड़ी ना हो पाती। In the end, we want to conclude it by saying that महिलाओं की साक्षरता का महत्व समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं के पढ़े लिखे होने पर वे अपने आप को समाज में एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकती है। वह समाज में अपनी एक ऊंची आवाज पहुंचा सकती है और वह अपने आप को इसीलिए हमें महिलाओं का शिक्षक होने का सम्मान करना चाहिए और हमें उन्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। थैंक यू। Such a nice performance by them. I would please to invite Honorable VC Sir to say their precious word on this occasion. Now I would please to invite Honorable Pro VC Sir to say their precious word on this occasion. Congratulations to all the future budding physiotherapists. आप लोगों ने जो इवेंट यहाँ पे करा तो मेरे को लगा कि मतलब पहले हम सोचते थे कि नर्सिंग वाले और ये बीएमएस वाले ही हैं अच्छे हैं, बट आप उनसे भी बेहतर हो। और ये जो आपने ये जो एक्ट किया, आई मस्ट एडमिट दैट दिस वाज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन कि आप इतना अच्छा कर सकते हो। और कई बार लाइफ में हम किसी जो भी प्रोफेशनल लेते हैं उसके प्रति हम एजुकेट होते हैं, क्योंकि तो मेरे को लगता है कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया कि फिजियोथेरेपिस्ट की क्या समाज में वैल्यू है। एंड kudos, congratulations and my appreciation to टीम जिन्होंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हर एक जो आपका एक्ट था और जिस अच्छे तरीके से आपने बताया। सो दैट वाज वेरी गुड। मैम ने लिटरेसी डे बनाया यहाँ पे हमारी इंग्लिश में, और जितने भी फैकल्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, खासकर जो मेरे जो यहाँ पे डीन है, ही हैज वर्कड राउंड द क्लॉक टू मेक IQAC की जो एक्टिविटीज को के माध्यम से विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, तो मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, केवल आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप सारे मोस्ट ऑफ यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो में क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जब वो कर रहे थे तो उन्होंने डिफरेंट जब ड्रग्स को हम वो फीड करते तो माइस के सैंपल्स पे टेस्ट करते हैं। तो फिर माइस से होता है पहले इन वीवो होता है, इन विट्रो, इन वीवो, फिर माइस, फिर रैबिट्स पे। तो रैबिट्स पे जब वो टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि कोलेस्ट्रॉल की एक डाइट उन्होंने जो कि नुकसानदेह थी वो उस पर स्टडी करी थी, कोलेस्ट्रॉल की डाइट से कितना नुकसान होता है। तो उन्होंने रैबिट को कोलेस्ट्रॉल की डाइट को खिला रहे थे। एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेक्शन में ऐसा किया जहाँ पे कि जब वो रैबिट की डाइट को खिलाते थे तो वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल जो भी वहाँ पे जो रिसर्चर थे वो उनको पूरा मतलब प्यार से और उसके सिर पे वो अपने आराम से उनको दे यूज्ड टू मेक देम हैप्पी। अब आपको ये मतलब इससे कोई यहाँ पे कोई वैसी बात नहीं है, ज्यादातर मैं अध्यात्म की बातें बोलता हूँ, बट ये प्योर साइंस है। तो क्या हुआ कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है जो कोलेस्ट्रॉल का, जो कि खराब होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल,
वो पाया गया कि वो वाला ग्रुप था इंटायरली चेंज हो गया। अब उससे क्या हुआ कि जो उसके नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई कोलेस्ट्रॉल की। तो बेसिकली इसको सरल शब्दों में बोलो कि आप दोनों जगह आपके वहां पे जहर है, पर एक तरफ उसका इफेक्ट ही आपने एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसलिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्यार से, सम्मान से, भावना से, प्रेयर्स के साथ अगर आप किसी को हीलिंग आप जो भी कर रहे हो, तो आप मेडिकल साइंस का एक आर्ट है वो कर रहे हैं, परंतु अगर पूरा भावनात्मक रूप से आप उसमें जुट जाए और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रेयर। जैसे कि आप लोग जब थोड़े बड़े हो गए या उसको पढ़ना साथ में कि जब आप प्रे भी करते हो तो वो भी हीलिंग में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। तो मेरे को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने भविष्य में जाओगे तो ये बात आपको याद रहेगी कि कैसे आप जब प्रेयर भी करते हो कि ये जो मेरा पेशेंट है अच्छा हील हो जाए, आप भावनात्मक रूप से बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से उसको डील करते हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए उसका ज़्यादा वो असरदायक होगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जो जिन बच्चों में भी मैं अभी मैथ से जो भी आपकी जिन्होंने तैयारी कराई, खासकर जो स्किट वाले बच्चे थे और जिन्होंने पोस्टर बनाए थे, सो पर्सनल लेवल पे इररिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का जो भी होगा, बट आई मेक श्योर दैट कम से कम जो पोस्टर वाले जो भी 10-12 बच्चे मेरे को नाम दे देना और स्किट वाले हैं, सो समहाउ वी विल ट्राई टू आपको एप्रिशिएशन के रूप में कुछ मतलब चाहे जैसा भी है हम आपको अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your precious words. Now, I would please to invite Honorable VC sir to say their precious word on this occasion. Namaskar. I congratulate the Department of Physiotherapy and Department of English and all other departments who are associated with today's program. आज जो प्रोग्राम हुई है उसको सफलता की फिजियोथेरेपी, इंग्लिश डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंट सारे जिनका नाम शायद मैं नहीं जानता हूँ और सारे स्टूडेंट को बधाई देता हूँ। बड़ा सुंदर रूप में आज इस दिवस का पालन किए। So we are proud of you all and we hope in future also भविष्य में इस तरह का और प्रोग्राम का करेंगे। बाकी यहाँ आज का जो दिन थोड़ा स्मरणीय दिवस है। 8 सितंबर हम कहते हैं लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, विश्व साक्षर दिवस, और साथ साथ फिजियोथेरेपी दिवस। लिटरेसी मतलब जो हम कहते हैं रीड, राइट, रीजन, रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस। पढ़ो, लिखो, सचेतन रहो और कोई भी चीज को तर्जुमा करो, इससे विश्लेषण करो, इससे हम मन के साथ जुड़ते हैं। और शरीर जो है एक हार्डवेयर है। ए ब्यूटीफुल माइंड रिजाइड्स इन ए ब्यूटीफुल बॉडी। एक सुंदर सा मन सिर्फ सुंदर सा शरीर रह सकता है और सुंदर सा शरीर मन को सुंदर रूप में संचालन करने में मदद करता है। और आज का जो दिन जिसमें हम वर्ल्ड लिटरेसी डे और वर्ल्ड दैट इज फिजियोथेरेपी डे, सो मन और शरीर का संगम का दिन। लेकिन इसी संदर्भ में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि लिटरेसी मीनिंग ये नहीं है हम पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया और भाषण भी दे दिया, बोल भी दिया, किसी को खींच भी लिया, टांग खींच लिया, हाथ खींच लिया। इसमें बहुत बड़ी चालाकी कुछ नहीं है। चालाकी तब होता है जब सब कुछ ना होते हुए भी गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि स्कूल गए नहीं, कभी अक्षर नहीं जानते हैं, लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कहते हैं इलिटरेट इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन वो जानते हैं कैसे चाष होता है, कैसे बीज रोपण किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उनका जो व्यवहार के ज्ञान जो है उनको भी साक्षर बनाता है। ये नहीं कि जो सिर्फ ABCD 1 2 3 इसलिए पढ़ लिए वही लिटरेट हो गए। एनीवे, तो मैं अपना वक्तव्य को एक फाइनल अंतिम चीज करके विराम देना चाहता हूँ। जैसे मन, शरीर, ये दोनों का मिलन होने में बात वही संपूर्ण नहीं होता है।
जो बात हमारे प्रोफेसर साहब हमेशा बोलते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं बोले हैं, तो उनका बात को मैं ऑब्जर्व पूरा करूंगा, जो एक्चुअली उनका फील्ड है, मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन विद हिज ड्यू परमिशन प्रोफेसर सर, मैं आपका बात को अभी संपूर्ण करना चाहता हूँ। जैसे ये मोबाइल सेट कैसे काम करता है, इसका एक हार्डवेयर है, ये सेट जो है एक शरीर है, ये शरीर दिखाई पड़ता है, उसका अंदर और एक चीज है, मन है, जो सॉफ्टवेयर एक है, दिखाई नहीं पड़ता है, और सबके ऊपर और एक चीज है, जो सिम कार्ड, मतलब शरीर दिखाई पड़ता है, सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हुए भी ये मोबाइल काम नहीं करेगा अगर इसका अंदर सिम नहीं है, सिम कार्ड नहीं है, तो सिम कार्ड उसका आत्मा बन जाता है। लेकिन तीनों होते हुए भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मोबाइल सेट तब काम करेगा, सिम तब एक्टिवेट होगा, जो टावर से सिग्नल आता है वो सिग्नल को रिसीव कर पाएगा, तब जाकर होगा। तो जब तक टावर के साथ हमारा नाता नहीं है, रिलेशन नहीं है, ये शरीर, ये मन और ये सिम कार्ड, शरीर है आपका बॉडी, मन है, ब्रेन है आपका सॉफ्टवेयर, और सिम कार्ड है आपका सोल। लेकिन तीनों परमात्मा के साथ जब नहीं मिलता है, टावर के साथ नहीं मिलता है, तो काम नहीं करेगा। ये प्रोफेसी का बात है, मेरा बात नहीं है, लेकिन उनका भाषा में मैंने समझाया। तो आज का दिन इतना कह के मैं संपन्न करता हूँ। आज विश्व साक्षर दिवस है, फिजियोथेरेपी दिवस है, दोनों को मिलाकर हम आत्मा के थ्रू में कैसे परमात्मा की तरफ जा सकते हैं, हमारी शिक्षा के थ्रू में, वही हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। नमस्कार सबको मेरा Thank you, sir, for your precious words. In the end of